Hello students, in the last class I have already explained to you minors and cofactor. Now in this class we will discuss the adjoint of a square matrix and inverse of the square matrix. See one by one. So first point is adjoint of this square matrix. The adjoint of a square matrix Aij n into n by because this is square matrix. In a square matrix, number of columns, number of rows will be same. Is defined as the transpose of the matrix Aij n into n, where Aij is the cofactor of the elements Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by ABJA. I will explain to you with example just after this topic. Okay. Now singular matrix. Singular matrix is this very important for your board exam. 1 mark question is very important. A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A is 0. ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नॉर्मली आता है 1 मार्क्स का. एक आपको डिटरमिनेंट मिलेगा. Show that you check this is singular or not. तो इसका determinant find करिए. 1 into 8 8, 2 into 4 8 0. It means it shows that कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. ऐसा भी हो सकता है इधर एक अननोन टर्म डाल दिया जाए यहाँ पर और आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ k if it is given that मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हम लोग उसको इक्वेट करेंगे डायरेक्टली यहाँ से. उसका डिटरमिनेंट 0 लिख दीजिए, इक्वेट करके उस अननोन टर्म का वैल्यू आ जाएगा. ओके. नाउ नॉन सिंगुलर, भाई जब सिंगुलर डिटरमिनेंट 0 होता है तो नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0. And another important point is here. This is the relationship adjoint, determinant of A or order. If A is a non-singular matrix of order n, then इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है 4.5 क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. ये दोनों ही 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 3 क्यों है? देखिए ऑर्डर 3 into 3 का तो n का वैल्यू कितना हुआ? 3. फॉर्मूला लगाइए adjoint of A, determinant of adjoint of A equal to determinant of A n minus 1. In place of n we can put 3. 3 minus 1 2. तो इसका वैल्यू कितना है? determinant of A square. Okay, so this is also important. And the next topic is inverse of a matrix. Inverse of a matrix is A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint of A. Adjoint of A अभी इधर बताया मैंने आपको, and determinant of A you know very well. And this one is a square matrix A is invertible, मतलब उसका inverse आएगा if and only if A is a non-singular matrix. So I am explaining you with example. Now this is an example related to adjoint and inverse. If A is a matrix, then find A inverse. It means एक square matrix given है 3 into 3 का और आपसे A inverse पूछा है. A inverse it means adjoint भी find करना पड़ेगा अपन लोगों को और इनवर्स भी. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले चाहिए कोफैक्टर्स और उससे पहले हम लोग डिटरमिनेंट चेक करेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम. यहां मैंने रो नंबर 1 को एक्सपेंड किया है. कैसे? देखिए 1 मींस एलिमिनेट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो 4 into 4 16 minus 9. सेकंड -3 ये एलिमिनेट किया. 4 minus 3 plus 3 3 minus 4 7 minus 3 minus 1 into 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 6 7 minus 6 1 is not equal to 0. It means this determinant is non-singular. It means inverse exist करेगा. Now find the cofactors. Cofactors निकालने का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया है. इस वीडियो में भी आप वापस देख सकते हैं. आप लोग इजी तरीका है, आप इनको सीक्वेंस में लिख दीजिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 and alternate mention the sign negative because this even 1 plus 1 even plus ही रहेगा. 1 plus 2 3 odd minus even odd even odd even odd even. तो odds के प्लेसेस पर नेगेटिव लगा दीजिए और डायरेक्टली चेक कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. 1 1 मींस कैसे?
4 into 4 16 minus 9 1 2 same 1 2 मीन्स ये वाला एलिमेंट ये, तो इसको कैंसिल करना है, तो 4 माइनस 3, ये देखिए 4 माइनस 3 ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 आएगा और माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब यहां तक लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट। एडजॉइंट में मैं क्या बताया था, जो कोफैक्टर्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के उनको लगा दीजिए और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, जो मैट्रिक्स हमने बनाया उसमें क्या है, कोफैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसका ट्रांसपोज मींस इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, चेंज कर 7 minus 1 इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे ले आइए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे लाइए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे लाइए, ये इंटरचेंज हुआ और ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ ए इनवर्स फॉर्मूला आपको मैंने अभी इससे पहले बताया, 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, तो 1 upon 1 1, तो एडजॉइंट ऑफ एज इट इज आ गया। सपोज ये वैल्यू अगर आता 3 2 4 समथिंग कुछ भी, तो 1 upon 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करिए, उसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड करिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, उससे आपको एडजॉइंट मिलेगा, एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करिए, ए इनवर्स आ जाएगा। ये सिंपल सा कांसेप्ट है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली एडजॉइंट और इनवर्स पे डिपेंड है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, मैं क्वेश्चन लिखा है इधर, सॉल्यूशन आपको करना है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। A and B are two square matrices. You can see it's most important question for board exams. दो मैट्रिक्स गिवन है, वेरिफिकेशन करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन कंसेप्ट ही होगा। देखिए अभी ए इनवर्स कैसे फाइंड किया था हम लोगों ने, कोफैक्टर्स, ये तो 3 into 3 था इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा, 2 into 2 में टाइम कंज्यूम कम होता है। आप लोग फर्स्टली ए डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। दोनों के डिटरमिनेंट्स रेडी है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए और इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा और इसकी हेल्प से बी इनवर्स फाइंड हो जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट क्यों चाहिए, बिकॉज ए बी इनवर्स हमें चाहिए। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करिए, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड होने पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लीजिए एंड देन ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स कैसे लिखेंगे, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, ओके। और जब आप बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स करेंगे तो आपको इससे मैच करेगा। इट मींस ए बी इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर कोई स्टूडेंट इसको ए इनवर्स बी इनवर्स करके कोशिश भी करेगा वो मैच नहीं होगा, बिकॉज ये जो थ्योरम है ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में फिट होता है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज रिलेटेड टू एडजॉइंट, कोफैक्टर्स एंड इनवर्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।